होता है, मतलब आप किसी दिन नहीं काम कर रहे हो तो आपको फर्क पड़ेगा। लिटरली आपको लगेगा कि आज आप काम नहीं कर रहे, हो सकता है इस महीने आपकी बिजनेस कम। 4 साल में मेरे को यहाँ से यहाँ लाने में बहुत बड़ा हाथ है उस कंपनी का। घर पे जाके बोलते हो, मम्मी पापा बोलते प्लीज बकवास बंद करो, बीकॉम किया तुमने, 53,000 की जॉब तुमको नहीं मिल सकती। सिनेरियो ऑफ वर्क एंड द फ्यूचर ऑफ यंगस्टर्स व्हिच आई फील यार इमेंस पावर है आज के टाइम पे कि यार आप अंधाधुंध पैसा कमा सकते। Time. And first of all, thank you, योगेश भाई, आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया एंड आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू इन द शो। Glad to be here, Hariom. Like, I think so. It's good that you reached out to me, and it's always good to even imagine people doing and taking such effort of doing podcast. वरना तो लोग थोड़ा सा lazy हो जाते हैं इन सब चीजों में. That's good. Yeah, Keep it up. thanks a lot. So can we start quickly and then we will discuss everything in the podcast. Yeah, perfect. We can start. Okay, perfect. So first of all, we will quickly start with your introduction, like what you are doing and your education, and then we'll move ahead. Okay. So I think so. My introduction is something like a very normal person. Okay. I don't have I also have a very normal life. The point is that if you talk about my education, I've just done BCom and nothing else. But my experience is very diverse in terms of how I have looked at life and I have done things. So pretty much, I think so. I have done my BCom and like before doing BCom, I was involved in a lot of startup activities. Like I tried to do a lot of startup in my college days. Okay. Wherein in the first year I was looking forward to start an event company. And probably the next thing I did was we started working with YouTubers because YouTube was booming at that time. So we made a startup for YouTubers. Even that worked, but again, for a certain extent, it did not work very well. Then I joined an NGO and realized that I was able to network with a lot of people. And from there, my life changed because I started becoming campus ambassador in a lot of top colleges and got exposure to a premium group of people, which made me, rethink my decisions related to life and eventually got me at better position. So from there, I think so. I landed my first job through LinkedIn. It was in the year 2017, if I'm not wrong, and that time while I was messaging this guy who hired me, it was a follow-up for 1.5 month. Like after that, he invited me to his office and then he took my interview. So कहना चाहता हूँ कि यार it takes a lot of follow up to actually get through the process if you really want to work with someone. Then I worked there for 6 months and realized that okay, I have to switch to something. I was into marketing, social media marketing. Then I realized okay, let's do something else. Then I got to know about Byju's and then went there, did sales for almost 4 years. Then realized that okay, I've learned sales now, getting bored. Let's do something else. So I get bored very easily. Byju's was the longest period of not getting bored eventually. Then I started doing branding. So all are in the same domain, but again, those are varied fields. If you take marketing, sales, and branding, totally different. So that's about me starting up with branding on LinkedIn and making my own business. Uh, but I think so. I've had a humble background. I come from a small village in West Bengal, and my education has primarily been into CBSE school, not ICSE guy. So I was very bad with English, but eventually realized that English is बहुत important है to grow in life. So that's how we figured out. Then pivoted to something better. थोड़ा सा English सीखा कि यार client से कैसे बात करेंगे, और बस ऐसी जर्नी है. बाकी अप्स एंड डाउन्स काफी रहे यार, वो पॉडकास्ट के दौरान पूछना, फिर बात कर लेंगे अगर कुछ वैसा ओके, श्योर श्योर। सो अभी तक कैसा चल रहा है? अभी यार देखो, अभी क्या है ना कि जॉब में क्या होता है, एक फिक्स सैलरी आ रही होती है. फ्रीलांसिंग वर्क या एजेंसी वर्क में क्या होता है कि आपको लीड्स अक्वायर करती रहनी होती है. जो प्रोसेस होता है, मतलब आप किसी दिन नहीं काम कर रहे हो तो आपको फर्क पड़ेगा. लिटरली आपको लगेगा कि आज आप काम नहीं कर रहे, हो सकता है इस महीने आपकी बिजनेस कम हो. तो जो लोग एक डिफरेंस लेके आते हैं, मैं आपको बता दूं, बोलते हैं यार जॉब छोड़ दिया, क्या मस्त लाइफ हो रही है. भैया जॉब में 8 घंटे 9 घंटे काम करने या 24 घंटे काम करने, कभी नहीं आपको पता, कभी भी काम करना पड़ जाता है. तो लॉट ऑफ दोज थिंग्स आर देयर. तो अभी अच्छी है लाइफ, बट मेरे को लगता है कि और ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए. और हो गए कुछ 6 महीने 8 महीने हो गए मेरे को जॉब क्विट किए, फिर भी घर चल रहा है यार, क्या चाहिए. राइट, ओके। एंड आप बायजूस के बारे में बताइए ना, वहाँ पे किस तरह का काम था, क्योंकि यू डिड सेल्स देयर, राइट? तो सेल्स इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, सो यू शुड नो सेल्स एंड यू कांट इग्नोर दैट. सो वो जर्नी बताइए ना, 4 साल की कैसी जर्नी रही है, किस टाइप की आपने सेल्स किया है? यार सेल्स मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है. मेरे को बड़ा मजा आता है वो करने में. मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ चेंजिंग जर्नी रही है बाइजूस में. मैंने बहुत पैसे कमाए और बहुत पैसे उड़ाए भी, फ्रैंकली बता रहा हूँ. तो मैंने लोन चुका है. सबसे पहले प्रायोरिटीज पे आते हैं, मतलब डेट था जिसके कारण बहुत इंटरेस्ट जाता था. सो ट्राई टू फोकस मोर ऑन के यार चल ठीक है, लोन वगैरह आपने चुका देते. उसके बाद कुछ पैसे खर्च भी किए, घूमने उमने गया. बाइजूस में सेल्स की जर्नी ऐसी रही है यार कि लोगों से बात करना सीखा. जब आप स्ट्रेंजर से बात करना सीख जाते हैं, लाइक यू कॉल्ड मी ऑन योर पॉडकास्ट. अब मेरे को
मैं सोच लो मतलब 5 मिनट पहले तक मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं तैयार किया, मेरे को पता है ठीक है क्वेश्चन पूछेगा मैं बता दूंगा। अब मुझे वो डर नहीं है, जो हो सकता है तुम बायजूस के पहले बात करते तो मुझे वो डर रहता। सो ये बायजूस काफी गेम चेंजिंग जर्नी रही है, और बहुत कुछ देखो सेल्स तो आज भी मेरे को लगता है कि अगर मैं वापस से इसको बंद करता हूँ अपने फ्रीलांसिंग को, तो मैं सेल्स में ही जाऊंगा, है ना। और मेरे को ट्रेनिंग बहुत पसंद है, मतलब आई एम मोर ऑफ ट्रेनिंग द पीपल इनटू सेल्स रादर देन जस्ट डूइंग सेल्स, कि यार कैसे आप ये चीज कर सकते हो, अगर कोई पर्सन आपका बात नहीं मान रहा है तो साइकोलॉजिकली आप कैसे इस बात को यूज करके वो चीज करा दो, वो ट्रेनिंग गेम मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक सो दिस हैज बीन द जर्नी ऑफ बायजूस, बट यस गेम चेंजर, 4 साल में मेरे को यहाँ से यहाँ लाने में बहुत बड़ा हाथ है उस कंपनी का। राइट, राइट, ओके। तो सेल्स में क्या अप्स एंड डाउन्स आपको है वो बताइए ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाउन्स बहुत ज्यादा आते हैं सेल्स में, लोग बहुत जल्दी क्विट करते हैं। यार मैं रियल कहानी बताऊं तो यार देखो, जब सेल्स में ट्रेनिंग के दौरान लोग ज्वाइन करते हैं तो मेरे बैच में भी लगभग 25 से 27 लोग आए थे, और 1 महीने बाद सिर्फ 3 लोग बचे थे। हम्म, ठीक है, तो ये होता है डाउन, मतलब लोग ऐसे क्विट कर जाते हैं। तुम बाद में क्विट करने की बात करो तो लोग उसी टाइम क्विट कर जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान लोगों को इतना ज्यादा पुश किया जाता है कि आपको पता चल जाता है कि बिकॉज सेल्स एक्चुअली में स्किल का गेम कम और माइंडसेट का गेम ज्यादा है। अगर आपको रिजेक्शन हैंडल करना नहीं आएगा, अगर आपका माइंडसेट नहीं क्लियर है कि आपको क्यों ये जॉब करनी चाहिए, तो आप नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है सेल्स में। तो मेरे को ये फील होता है कि सेल्स में डाउन जो होता है, डाउन साइड होता है कि यार रिजेक्शंस बहुत फेस करने होंगे, आपका सेल्फ एस्टीम डगमगाएगा। मतलब कोई इंसान आपको रिजेक्ट करेगा उसके अपने रीजन की वजह से, बट आप फील करोगे कि आप में कमियां हैं, आप राइट, में राइट। गलतियां हैं। ये सेल्स का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। तीसरा डाउनफॉल है यार, आपकी कैरेक्टर बहुत खराब हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइप के सेल्स में हो, बिकॉज आपको टारगेट पूरे करने हैं। मंथ एंड में तो आप चिल्लाओगे अपने लोगों पे, और बहुत कुछ ये सब चीज होता है जिससे इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जाता है कि किस टाइप के जॉब में आ गए। बट अगर आपको अपने अपने ऊपर कंट्रोल है, एंड आप बेटर तरीके से अपने आप को उस जर्नी में क्या बोल सकते हैं कि कंपोज, काम एंड कंपोज रख सकते हो, तो सेल्स से बेटर रिवॉर्डिंग जॉब कुछ नहीं है। अच्छी बात तो ये रही है यार कि मेरा पहला इंटरनेशनल जो ट्रिप रहा वो सेल्स की वजह से रहा। इस्तांबुल वाह। गया था मैं, तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है भाई। मतलब तुमको यहाँ से फ्लाइट पे लेके जाया जा रहा है, रूम की रेंट जिसमें रह रहे हो 40,000 रुपए महीने की उसकी रूम की रेंट है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे को लगता है कि दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस एंड अंडरस्टैंड दैट बहुत रिवॉर्डिंग जर्नी है। फिक्स्ड जो इनकम आएगा उसको तो बैंक में कहीं डिपॉजिट कर दो, और इंसेंटिव से खाओ पियो ऐश करो, एज राइट, राइट। यही सो बोल सकता हूँ। ओके, एंड सेल्स से ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की जर्नी क्यों स्टार्ट हुई, कोई रीजन, या फिर कैसे शुरू हुआ ये सब कुछ? मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग से सेल्स में हुई ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग थी फिर सेल्स हुई, अभी पर्सनल ओके, ब्रांडिंग में आ गया हूँ। अभी कहाँ ओके। मार्केटिंग थोड़ी कर रहा हूँ अभी तो, हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग ब्रांडिंग। लोगों के लिए, हाँ ब्रांड कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में ज्यादा बातचीत होती है यार। फ्रैंकली सोशल मीडिया से पहले जो ट्रांजिशन सेल्स में, उस ट्रांजिशन का रीजन था कि उस टाइम के लिए जॉब छोड़ना पड़ा था। और क्या होता है ना कि देखो, पहली सैलरी थी मेरी 16,000 रुपए, वो मिलते थे इन हैंड कैश। और फिर आपको एक जंप लेना पड़ता है लाइफ में जब आपको पता चलता है। तो हुआ ये था कि मैं बीकॉम सिर्फ करके रखा था, मेरी पहली जॉब लगी थी 56,000 रुपीज। ठीक है, मतलब आप बोल लो कि 56,000 रुपीज आपको इन हैंड मिल रहा है, आप अपने घर पे जाके बोलते हो, मम्मी पापा बोलते हैं प्लीज बकवास बंद करो बीकॉम किया तुमने, 53,000 की जॉब तुमको नहीं मिल सकती। हाँ, तो फिर आप अपने घर के बड़े लोग जो अच्छे अच्छे नौकरी पोस्ट पे, उनको जाके बताते हो, तो वो बोलते हैं यार प्लीज मजाक मत करो, हमें हाँ। 53,000 पहुंचने में 20 साल लग गए करियर में, राइट। तुम फ्रेशर में काम आओगे बीकॉम करके। हम्म, तो जब पहली सैलरी स्लिप आई, 56 नहीं था शायद, 53,000, 53,666 ऐसे कुछ थी। तो दिखाया, तो कहते हैं इतने अकाउंट में आए हैं। हम बोले हाँ इतने अकाउंट में आए, हाँ, ये देख लीजिए। तो फिर वो दूसरी सैलरी या पहली सैलरी से मैंने घर पे फ्रिज लेकर आया था, मुझे याद है। वाह, तो ग्रेट। रियलाइज हुआ था कि वो होती है एक हैप्पीनेस की, यार देखो क्या होता है कि वो एक 16,000 से लगभग 53,000 की जो जर्नी रही है, तो वो एक बहुत बड़ा जंप रहता है। घर वाले विश्वास नहीं करते, चलो ठीक है क्योंकि आपने सिर्फ बीकॉम किया हुआ है। बट देखो बीकॉम के पीछे लोग ये नहीं देख रहे हैं कि भैया वो 3 साल मैंने रगड़ के क्या क्या चीजें की। चलो मैं तुमको बताता हूँ। पहले साल मैंने इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी शुरू करने की सोची, ड्रास्टिकली फेल हुआ। बट उस दौरान मैं इतना दर दर भागा था कि मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला। सेकंड कंपनी में मैं काम कर रहा था, एक रिकॉर्ड होल्डर है, मोहित जैन नाम है, उन्होंने ऑन प्ले न्यूज का एक आइडिया लेकर आया था। अभी वो वेबसाइट लाइव है, बट अब वो कंपनी बंद हो चुकी है। तो हम यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट करते थे। तो फिर आज के टाइम पे मेरे पास भुवन बाम और आशीष चंचलानी सबका नंबर है अपने ओके। फोन पे। तो वो हमने वहां से नेटवर्किंग काफी अच्छी हुई। फिर मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया, मैंने आईपीएल के टिकट्स ब्लैक किए हुए हैं, है ना। मतलब लिटरली बोलने वाली बात नहीं होती, बट बता रहा हूँ, आईपीएल के टिकट्स मैंने ब्लैक किए हुए सो दैट मैं अपने वहां का रेंट पे सकूं, मतलब पे कर सकूं। दिस वॉज फॉर सम गुड रीजन, कुछ खराब रीजन के लिए नहीं। फिर मैंने वो देखते हो वो जैसे कोई प्रमोशन हो रहा है किसी फिल्म का या कोई ब्रांड का, तो आपको ब्रांड की शर्ट पहना के खड़े कर देते हैं, राइट, 500 रुपए हाँ। दिन के देते हैं। मैंने वो काम किया हुआ है, 500 रुपए दिन का।
मतलब हम्म सोच लो, मतलब मैं बीकॉम करते करते ये सब काम किया हूँ। फिर ब्रांड कैंपस एम्बेसडर मैंने बना और कॉलेजेस में जाके कॉलेजेस के वर्कशॉप्स बेचता था। सो हम्म वहां से वो जर्नी आई थी यार, पता चला था वहां हम्म प्रॉफिट बनता है। तो लोगों को लग रहा है कि यार बीकॉम किया कैसे जाके चला गया। हम्म भैया सिलेक्शन होने का रीजन तो चलो ठीक है, 27 लोग सिलेक्ट हुआ, आप ये देखिए सर्वाइव कितने लोग किए। एंड मैं 4 साल टिका। बायजूस जैसी राइट कंपनी आज के टाइम पे जहां पर कोर सेल्स इतना हाई है, वहां पर अगर आप 4 साल रह रहे हो तो यार बहुत बड़ी बात होती है। रियली सो रियली ये जर्नी रही। और फिर ब्रांडिंग की जर्नी ये आई ना दोस्त के, देखो यार कंपनी के लिए 20 करोड़ रुपया धंधा किया था। हम्म एग्जाम्पल चलो हम 20 करोड़ छोड़ देते हैं, मैंने कंपनी के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए बेचे फर्स्ट ईयर हम्म में। अब हम्म 1 करोड़ 20 लाख रुपए में मेरे को जो इंसेंटिव मिल रहा है वो उस पे 10% अगर मिला तो मोटा मोटा आप लगा लो 12 लाख रुपए मेरी 12 लाख। कमाई हुई। हम्म इंसेंटिव फिक्स हटा के मैं बोल रहा हूँ। हम्म तो मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं अपना प्रोडक्ट बचा के, मतलब अगर बना के कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना के 1 करोड़ 20 लाख में खुद के कोई हाई टिकट प्रोडक्ट बेच लूं ऐसा, हम्म अगर मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है तो वो पूरी प्रॉफिट तो मेरे पॉकेट में आएगी। राइट। इंस्टेड ऑफ कंपनी को देना, मैं जब सेल्स जान गया तो मैं वही करता हूँ ना। हम्म तब मैंने फोकस। अब जो प्रॉफिट आती है, सोचो मैंने एक कोई सर्विस बेची 50,000 रुपए, तो 50 रुपए पूरे मेरे दोस्त, पहले वो पांच राइट। हजार रुपए आते थे या हम्म 10,000 रुपए उसके आ गए मैक्सिमम। अब आ रहे राइट। हैं उसके 50,000 रुपए मेरे पॉकेट में, गवर्नमेंट को हम्म एक सर्टेन अमाउंट टैक्स दे दिया, हो गया। तो हम्म ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन रहा है जो कि मेरे साथ हुआ है, एंड आई थिंक सो दिस हैज बीन द गेम चेंजर। ओके ओके ग्रेट। है ना, तो इसीलिए मैंने ये ट्रांजिशन लिया। ओके सो पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा सा इलोबरेट करेंगे कि किस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप के क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे हैं। यार मेरी प्राइमरली मैं बता देता हूँ एक मिनट जस्ट। प्राइमरली मेरी 3 टाइप की सर्विसेज रहती है। हम्म जैसे एक होता है कि अगर आपको पता नहीं है कैसे अपनी ब्रांड को बनाते हैं, क्या क्या हम्म चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बिल्डिंग की सर्विस होती है, जिसके लिए मैं करीबन 10,000 रुपये चार्ज करता हूँ। ओके। ठीक है, फॉर या अभी प्रेजेंट टाइम पे बढ़ते रहता है वो, तो 10,000 रुपये 2 घंटे में बैठता हूँ आपके साथ। ठीक है, दैट ओके। इज माई कॉस्ट। सेकंड है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, मैं आपको करके देता हूँ। मतलब आपकी जो प्रोफाइल है, उस हम्म प्रोफाइल में एक बैनर, मतलब कॉपीराइट कर देता हूँ पूरे प्रोफाइल को इस तरीके से कि अब वो आपका सेल्स पेज की तरह बन जाता है, एक फनल की तरह बन जाता है। तो हम्म वो बहुत एक इंपॉर्टेंट आर्ट होती है, तो उसके भी मैं 10,000 लेता हूँ। बहुत ही प्राइसिंग अगर आप इंडियन मार्केट के हिसाब से भी देखोगे, वो जो अच्छा काम करे उस पर ये प्राइस। और हम्म थर्ड, कोई बोलता है कि नहीं यार योगेश मैं चाहता हूँ पूरा काम आप कर दो, तो उनके लिए घोस्ट राइटिंग सर्विसेज करता हूँ, विच इज अगेन ऑन अ हायर एंड। वो सर्विसेज ही मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए 50,000 रुपए से शुरू होती है महीने की, एंड देन उस हिसाब से आगे बढ़ती है। सो दैट इज अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज आई प्रोवाइड। अभी आगे और प्लान्स है कुछ सर्विसेज और लाने के, कोहोर्ट्स लाने के, कुछ ई बुक्स लॉन्च करने के, तो ओके। वो आएंगे। तो अभी तो एज ऑफ नाउ धीरे धीरे करके ये बनाया है, और हम्म मोटा मोटा एक अच्छा खासा 7 फिगर बिजनेस हम 8 महीने में रीच कर पाए हैं अभी तक, तो मतलब वो अर्निंग हो पाई है। ओके ये चीज रही है। ओके ग्रेट। एंड क्लाइंट्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे किस टाइप के क्लाइंट्स होते हैं। मैं जनरली या तो कोई कोच होता है, हम्म या तो कोई फाउंडर होता है, या सीईओ होता है, ओके। या एक सीएक्सओ बोल सकते हैं आप। सीईओ क्या बोले, सीएक्सओ मतलब एक टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव जो होता है, उनके साथ ही काम करते हैं अपन। ऐसे लोग के साथ काम नहीं ओके। करते जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है। हम्म रीजन भी क्या होता है, देखो अपन बहुत क्वालिटी वर्क कर रहे हैं और हम लोगों ने हम्म लिंक्डइन पे पूरा अपना वक्त झोंक दिया इस प्लेटफॉर्म को समझने में। नाउ हम्म वही क्वालिटी सर्विस अगर हम लो एंड क्लाइंट को देते हैं जिनकी बजट बहुत कम है, तो हम्म डिफरेंस ये हो जाता है कि वो उनको वो सर्विस देके क्या होगा कि वो प्राइस पॉइंट मैच नहीं कर पाएंगे और हम उस क्वालिटी को मैच नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वाई राइट। थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट के साथ ही हम वर्क करते हैं। और हम्म जिनके पास टाइम की कमी है तो उनके लिए वो टाइम सेव करने के चलते हम लोग को वो पैसा पे करते हैं, एज सिंपल एज ओके ग्रेट। ओके ग्रेट। एंड मैंने देखा है आप एक बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर भी हैं, राइट? तो दैट। उसकी जर्नी बताइए, वो कैसी है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे शुरू हुआ। यार वो जर्नी तो बहुत पुरानी स्कूल से शुरू हुई हुई है। मतलब मेरे को बहुत शौक था कि यार, फेम का आज भी शौक है, पहले भी रहा है और अभी भी है। हम्म तो मेरे को लगता है कि फेम के कारण मैं स्कूल में काफी डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता था। और जब हम्म मैं वो डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता था तो वहां पे मेरे को इंटर स्कूल डिबेट में काफी प्राइजेस मिले। हम्म देन उसके बाद मैं जब कॉलेज में आया तो कॉलेज में भी इंटर कॉलेज डिबेट के लिए गया, और मैं हम्म होस्टिंग करता था अपने कॉलेज में ओके। और बाहर के कॉलेजेस में भी। तो वो होस्टिंग की वजह से एक एक्सपीरियंस रहा कि यार क्राउड हैंडलिंग कैसे होगी, तो वो थोड़ा सा हम्म एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो हम्म इवेंचुअली मेरे को रियलाइज हुआ कि पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ी एक आर्ट है जो आप मास्टर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इट टोटली हम्म डिपेंड्स अपॉन यू। तो वहां से एक जर्नी अपनी शुरू की और एकदम फोकस्ड रहा कि यार चलो ठीक है पब्लिक स्पीकिंग के तौर जाता है। तो शुरुआत ऐसी हुई कि यार यू नो लोगों से इंटरेक्शन समझ में आ गया था। टेड के बहुत सारे वीडियोस देखे हम्म कि लोग कैसे शुरुआत करते हैं। सो मैक्सिमम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं, थोड़ा सा ह्यूमर एलिमेंट लेके आ जाते हैं। हम्म तो वो सारी चीजों जगहों से सीखा, फिर खुद ट्राई किया। अब कहीं कहीं पब्लिक बहुत मजा आया उनको सुन के, कहीं कहीं पब्लिक होल्ड भी हम्म रही, तो डिपेंड करता है। बट हाँ जर्नी बहुत अच्छी रही अभी तक तो। बट आई अभी मेरे को लगता है कि अभी मैंने 10% ही अचीव किया, उसमें मेरे को 90% बाकी है। पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत हद तक मैं समझ गया हूँ, बट यार मेरे को लगता है कि दिस पब्लिक स्पीकिंग जर्नी आई वांट टू गेट सच एट सच हाइट कि वो नरेंद्र मोदी सर का हुआ ना अभी के, हम्म वहां पर कांग्रेस में उनको 15 स्टैंडिंग ओवेशन मिले, वैसे ही राइट। स्टैंडिंग ओवेशन चाहिए भाई, वो होनी हम्म चाहिए लेवल ऑफ वे आपका बोलने का।
तो वैसा जब थॉट प्रोसेस पहुंच जाएगा तब यार कुछ मानेंगे अपने आप को पब्लिक स्पीकर। अभी तो चलो कोई बुला लेता तो चल जाते हैं। ओके ग्रेट। एंड हाँ जी। आपने जतिन भाई के साथ भी काम किया, उनके साथ हमने पॉडकास्ट किया, और उनकी जो एनर्जी है हाँ वो एक अनमैचेबल है, मतलब कि इनसेन, बहुत ही मजा आया था उनके साथ पॉडकास्ट करके। तो आपने यार कितना देखो काम किया है जतिन, उनके साथ? जतिन के साथ तो बहुत कम होती है हमारी, हाँ उसका नाम सुनते ही एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर, हाँ। क्योंकि देखो जतिन इज अ गाय हु इज सो मेरा मेरा जब मैं आप को जतिन के साथ देखोगे तो एनर्जी इज द सेम, ठीक है। हाँ। और डिपेंड देखो क्या होता है जतिन के साथ ये है कि आप कितने भी लो ऑन एनर्जी हो, हम्म। बट सामने वाले पर्सन को वो बहुत ही एनर्जेटिक वे में मतलब वो उसमें एनर्जी डाल देता है, सो ही इज वेरी हाँ। कंटेजियस एज अ पर्सन। मेरे साथ क्या है कि आई एम समवन हु इज वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड जी। आल्सो एनर्जेटिक, डिपेंडिंग अपॉन के यार सामने वाला पर्सन भी कैसा है, मेरे साथ हाँ। ये चीज होती है। हम्म। नौ जतिन के साथ हमारी पहली मुलाकात हुई थी उसके ही पॉडकास्ट में उसने मेरे को बुलाया था, तो वहां हाँ। जाके हुआ था, एंड देन फ्रॉम देयर आई इनवाइटेड हिम टू एसआरसीसी। तो एसआरसीसी में मैंने बोला कि यार ब्रो यू हैव टू स्पीक एज वेल, हम्म। ब्रो बोलना नहीं है, मुझे लगा होस्ट करना है, मैंने बोला जा अच्छा। स्टेज इज ऑल योर्स बोल। हम्म। So he nailed it there. So then, so probably we are best of the friends. We support each other in terms of our network as well. ऐसा हम्म। नहीं होता कि सिर्फ अपन नॉर्मली जस्ट ऐसी बात करें, वी मेक श्योर दैट हम अपने नेटवर्क्स को शेयर करते हैं, कुछ आइडियाज आते तो शेयर करते हैं, सो दैट इज द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप वी शेयर, सो दैट्स हाउ मी एंड जतिन हैव बीन राइट ऑल थ्रू आउट द जर्नी। राइट राइट। वो एक पर्सन मुझे याद ही रह गया, क्योंकि उनके साथ जो पॉडकास्ट हुआ था, अभी 2-3 पॉडकास्ट के पहले ही किया था। तो वो एक अलग एनर्जी थी और एक अलग ही मोमेंट था वो मेरे लिए भी। एंड फ्रॉम करेक्ट। देयर आई गॉट योर नंबर, एंड देन वी आर हियर। एंड देन अच्छा जतिन ने आपको बताया था क्या, कुछ सजेस्ट किया था क्या? नहीं, उन्होंने सजेस्ट नहीं किया था, मैंने उनकी लिंक्डइन फीड में आपका नंबर या कुछ कमेंट में ऐसा कुछ देखा था। अच्छा, गॉट एंड इट देन गॉट आई इट गॉट इट। रीच आउट टू यू फ्रॉम देयर। चलो बढ़िया बढ़िया, ओके ग्रेट। ओके। एंड देन लेट्स मूव अहेड। अभी आपकी टीम है या फिर आप किस तरह से काम कर रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं, किस तरह से फोकस कर रहे हैं? यार देखो ये बहुत बड़ा मतलब, चलो ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं जवाब देता हूँ। सो होता हम्म। ही है ना कि मैं अपनी कंपनी में टीम हैंडल करता था, बट अभी मैंने यार टीम नहीं रख के रखी है, बिकॉज देखो व्हेन व्हेन टीम कम्स ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है, आप उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स इनकम आपको देना पड़ता है। तो एज ऑफ नाउ मैं प्रोजेक्ट बेसिस पे हायर करता हूँ, जहां जरूरत पड़ती है आउटसोर्स करता हूँ। आई एम नॉट मेकिंग अ टीम, आई एम मोर ऑफ अ सोलोप्रेन्योर अदर देन एंटरप्रेन्योर, मैं ओके। यही बोलूंगा। सो आई एम नॉट ऑल्सो ऑफ एन ओपिनियन कि यार आप हमेशा टीम अपने साथ रखो, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप एकदम स्टेबल इनकम सोर्स पे पहुंच गए हो, जब आप एक सर्टेन अमाउंट कमा रहे हो, और आपको पता है क्योंकि कुछ मंथ्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मंथ्स बहुत डाउन भी होते हैं, सो आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज, और मेरे को लगता है कि दिस इज द बेस्ट पार्ट। तो इसीलिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है हमेशा, तो मैं अभी टीम को नहीं इन्वॉल्व करके, बेटर आइडिया ये रहता है मेरे में कि यार लेट्स कीप इट लाइट, ओके प्रोजेक्ट बेसिस पे हायर करते हैं हम लोग। ओके। तो प्रोजेक्ट बेसिस में किस टाइप के लाइक एम्प्लॉय आप हायर करते हैं, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होती है? सिंपल है ना यार, अगर मुझे लगता है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग की ओके। रिक्वायरमेंट है तो मैंने प्रोजेक्ट किसी आउटसोर्स कर दिया, मेरे को हम्म। पता है कंटेंट राइटिंग कराना है किसी से, मैंने वो आउटसोर्स कर दिया। वो तो आप ओके कभी भी अपने हिसाब से सिस्टमैटिक वे में कर सकते हो, दैट इज टोटली और योर कॉल। हाँ, दैट इज हाउ ओके वी डू इट। ओके। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कि फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप है तो उसमें आपका ज्यादा मतलब आपका वर्क बहुत ज्यादा है तो फिक्स्ड कॉस्ट पे रख लो, अगर आपका वर्क फ्लक्चुएट होते रहता है तो प्रोजेक्ट बेसिस पे करो, दैट्स ऑलवेज फीजिबल। ओके ग्रेट। एंड नाउ लेट्स मूव अहेड, एंड यंग ऑडियंस को या यंग लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग? यार यंग लोगों को तो मैं यही बोलूंगा कि समझो इस बात को कि जमाना आगे बहुत ही डिफरेंट है, एआई हैज कम इनटू दिस स्पेस, एंड व्हेन पीपल टॉक दैट दे विल बी देयर इज अ होल डिबेट अराउंड दे विल बी टेकिंग अ जॉब और नॉट, आई थिंक सो लॉट ऑफ द जेनरिक जॉब्स विल डेफिनेटली गेट रिडंडेंट। जो लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं कुछ नया अगर नहीं लेके आ रहा हूँ, मतलब आपको नहीं आता है कुछ एकदम अलग सा करना, तो बहुत हार्ड हो जाएगा प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करना या एक प्रॉफिट बेस बनाना। तो मेरे को लगता है एआई विल गेट इनटू दिस स्पेसेस, तो यार लोगों को यही बोलूंगा यार कि डोंट जस्ट डिपेंड अपॉन वन सोर्स ऑफ इनकम एंड डेवलप अ लॉट ऑफ स्किल्स, डाइवर्सिफाई करो, सो दैट कहीं भी जाओगे तो बता पाओगे कि ये चीजें मेरे को आती है, दिस आई एम वेरी गुड एट, एंड दैट इज हाउ थिंग्स विल बी मोर ऑन योर साइड। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड यार, ऑलवेज ट्राई टू नेटवर्क एंड टॉक टू पीपल हु आर बेटर देन यू एट योर वर्क, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं खुद भी करता हूँ, मैं बहुत लोगों से जूम कॉल पे ऐसे के बात करता हूँ, और मुझे लगता है कि वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और तीसरा, लर्न टू आस्क गुड क्वेश्चंस, नॉट डोंट लर्न टू गिव गुड आंसर्स, बट लर्न टू आस्क गुड क्वेश्चंस। इफ यू नो द आर्ट ऑफ आस्किंग गुड क्वेश्चंस, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग द हाइट यू वांट, बिकॉज फिर आप लोगों से बहुत अच्छे अच्छे बातें निकलवा पाओगे जो ऐसे नहीं निकलती है। यस। एंड या सो ओके, सो लेट्स मूव अहेड। एक अभी आपने एआई की बात करी तो हम थोड़ा एआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप अपने काम पे किस तरह से एआई को यूज किया हुआ है, तो किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस तरह का मतलब एआई आपको हेल्प कर रहा है आपके काम पे? यार सोच के देखो कि एग्जाम्पल ले लो, जैसे तुमको एक वर्चुअल असिस्टेंट मिल गया हम्म। जिसको तुम कुछ भी बना सकते हो, जिसको हम्म। तुम ग्राफिक डिजाइनर बना सकते हो, जिसको तुम कंटेंट राइटर बना सकते हो, हम्म। तो ऐसा एआई कौन सा है? अगर मैं तुमसे पूछूं जिसको तुम कुछ भी बना सकते हो,
अभी तो आई थिंक मैं टेक्स्ट एआई मैंने यूज किया, जो चैट जीपीटी, ग्राफिक्स वाला हम लोगों ने यूज नहीं किया। हाँ, तो वही चैट जीपीटी बात कर रहा हूँ, बिकॉज चैट ओके। जीपीटी भी एक ग्राफिक्स का भी हेल्प ले सकता है, बिकॉज आप मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट्स उससे निकाल सकते हो। मिड जर्नी तो चलो अभी चार्जेबल साइड में चला गया। हम्म चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसको आप कुछ भी बना सकते हो, हम्म वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन मेक चैट जीपीटी। हम्म सेकेंड चीज पता है क्या है कि यार मेरे को ये टूल क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज ब्रेन जो आप लोगों के बहुत सारे लोगों को लाके करते हो, वो काम आपका ये करके दे देते। तो हम्म मेरे लिए सबसे बड़ा गेम चेंजिंग टूल तो यही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी और एआई है यार, क्विलबॉट है जिसको मैं पैराफ्रेज के लिए कई बार यूज कर लेता हूँ टू गेट बेटर वर्ड्स एंड बेटर सेंटेंसेस। So a lot of those, but my personal favorite remains to be ChatGPT, which I've been using, and that has been a game changer for me. और सबको करना चाहिए। मेरे को लगता है कि आज के टाइम में लोग बोलते हैं AI यूज करने से होता है, वो होता है। अरे भाई, तुम अगर यूज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे से जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो कंपटीशन में तुम पीछे होते जा रहे हो। आज के टाइम पे इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू यूज AI टूल्स। अगर आप सीख लोगे तो आप ऐसे ही टॉप 10% पॉपुलेशन पे आ गए। आपको यूज करना आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए मार्केट में क्या टूल चल रहा है, क्या चीज AI के थ्रू पॉसिबल है, सब कुछ। खाली रील देखते मत रहो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Right, perfectly true. Okay. Can we sum up this podcast here? Because I You think can it's ask time. more questions also. I don't mind. If you have like I am ready for 1 hour I've kept. You can ask a half an hour question. तुमको Okay. एडिट करके इधर उधर डालना है, वो करना है, Okay. करो आराम से। कंट्रोवर्शियल पूछना है, कंट्रोवर्शियल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मोर देन हैप्पी टू आंसर। ओके, नहीं कंट्रोवर्सी हो तो मुझे कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। अगर आप बताना चाहते हो बता सकते हैं, आपका आंसर। यार ऐसे यार रैंडमली तो क्या ही बताऊं मैं कि हाँ। क्या कंट्रोवर्सी है, बट यार मुझे लगता है कि इफ देयर इज अ थिंग रिगार्डिंग द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ वर्क एंड द फ्यूचर ऑफ यंगस्टर्स, व्हिच आई फील यार इमेंस पावर है आज के टाइम पे कि यार आप अंधाधुंध पैसा कमा सकते हो। अब कोई लिमिट नहीं रही। यूपीआई आ गया है, सारे डिजिटल पेमेंट्स तरीके आ गए हैं। आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हो आराम से बैठ के। यू जस्ट नीड अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन, बस। जिंदगी में ऐसा कोई अमाउंट ऑफ पैसा नहीं है जो आप नहीं हासिल कर सकते हो। यू जस्ट नीड अ इंटरनेट कनेक्शन। स्मार्टफोन में अगेन उतना नहीं होगा, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए बहुत तगड़ा वाला। जितना बेहतर इंटरनेट कनेक्शन उतना आपका फास्ट प्रोडक्टिविटी, एंड यू कैन विन द वर्ल्ड। ऐसा कोई चीज नहीं जो आप सीख नहीं सकते हो। ऐसा कोई यू कैन से कोई अमाउंट ऑफ मनी नहीं है एज अ गोल आप नहीं रख सकते हो। ऐसा कोई स्किल नहीं जो आप फ्री में अक्वायर नहीं कर सकते हो। अगर कोई कह रहा है कि यार बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है मैं ये स्किल नहीं सीख पा रहा, सॉरी ब्रो। मैं बहुत बड़ा एक रियलिटी तुमको बताता हूँ कि यार आज के टाइम पे यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है फ्री पे। अब बोलेगे यार योगेश होता क्या है कि हम सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हमको बहुत सारी सोर्सेज आती है, बट बहुत जेनरिक हो गई है बहुत सारी चीजें, फिर सबको पता चल जाती है वो चीज। ब्रो यूट्यूब पता है, यूट्यूब में आज तक याद है जैसे तुम गूगल पे जाते हो, गूगल पे सेकंड पेज पे गए हो आज तक? लास्ट कब गूगल पे सेकंड पेज पे गए थे, याद करो कुछ सर्च करके। नहीं सेकंड यार। पेज छोड़ो भाई, नीचे तक नहीं जाते हो यार। सेकंड पेज तो बहुत दूर की बात बोल दी। तुम फर्स्ट के 3 देख के तो उस पर तो क्लिक कर देते हो। तुमको नहीं लगता कि यूट्यूब पे भी हम सेम चीज कर रहे हैं? कभी सेकंड पेज पे जाओ, यूट्यूब पे नीचे देखो कि मतलब किस हद तक जो कंटेंट वायरल नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है कि वो अच्छा नहीं है? हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बोरिंग रिसोर्सेस रखी हुई है जो कि हाईली वैल्यूएबल है, बट क्योंकि उसको बहुत ज्यादा लोग नहीं कंज्यूम करते हैं, इस कारण से वो आपके फीड में नहीं आ रही है। पर है बवाल, उसमें है बहुत कुछ। वन ऑफ दम एग्जांपल स्टैनफोर्ड के ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसपे बहुत कम व्यूज है, क्योंकि वो राइट बोरिंग राइट। है ना बॉस। इंटरेस्टिंग नहीं, उसका थंबनेल किसी ने इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, वो प्योर एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। सिंपल लर्न बोल के एक वेबसाइट है, वो लोग बहुत प्यारा कंटेंट बनाते हैं मेरे हिसाब से। सिंपल लर्न या क्या है, 12-12 घंटे की, 14-14 घंटे की मास्टर क्लास दे रखी उन्होंने। 12-14 घंटे किसको कहते हैं? और उसको अगर आपने कंज्यूम कर लिया बिकॉज जस्ट वो बोरिंग है, तो आप कंज्यूम नहीं करते हो। ये जो राइट पावर राइट। बीआई 50 गो टूल बोलते हैं, सब कुछ आप इंटरनेट से फ्री में सीख सकते हो। ठीक है। सो दीज आर समथिंग दैट पीपल हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे मैं बताना चाहता था। ओके। बाकी ओवर टू योर एंड क्वेश्चंस, ओके, व्हाटएवर यू मे सो आस्क। कुछ स्किल्स बता सकते हैं जो आने वाले 5 साल बाद जो मार्केट में रहेंगी, जो अभी कोई एक्वायर करना चाहता है वो स्किल्स तो। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे को लगता है कि मार्केट में रहेंगे ऐसे चीजें। देखो पहली स्किल है कॉपी राइटिंग। हम्म कितना भी एआई से लिखवा लो, कॉपी डॉट एआई आया, बहुत सारे एआई आ गया, बट आप जिस तरीके से आपका जो आर्ट और आपका जो ब्रेन वर्क करता है, आपके ब्रेन में जो कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, वो एआई में नहीं आ सकती। एआई क्या है कि बहुत सारे जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन उसको लेके बनाता है, हम भी उस इंफॉर्मेशन को लेके बनाते हैं, बट अगेन हमारी क्रिएटिविटी लेवल उससे ज्यादा हाई होती है। सेकंड मेरे को लगता है कि आई डोंट नो अबाउट एआई, बट डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बढ़ते ही जा रहा है। बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बढ़ते जा रहा है। तो उसमें आपको अगर लग रहा है बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आ गई, कोई बात नहीं भाई। हर दिन कितने स्टार्टअप्स हो रहे वो देखो, हर दिन कितने क्रिएटर्स आ रहे वो देखो, और देखो आपकी सर्विसेज किस लेवल तक चल जाएगी। दैट इज नंबर सेकंड मेरे को लगता है।
थर्ड, अगर आपको कोई चीज सीखनी चाहिए तो वो हो जाती है मेरे हिसाब से ग्राफिक डिजाइनिंग। तो अभी चलो मिड जर्नी की वजह से और एआई जनरेटिव टूल्स की वजह से काफी चेंज हो गया, बट ग्राफिक्स में भी अगर आप एक ब्रांड किट की तरफ जाओ, मतलब कहने का मतलब है कि अगर सिंपल एक ग्राफिक बनानी तो थोड़ा सा क्लमजी आज के टाइम पे, बट कोई कंपनी आपको बोल रही है कि आपको सारे ब्रांड सारी ग्राफिक्स बना के देनी है सारे, तो वो अगर आपको सारा ग्राफिक्स बना के देना है, मतलब उसके विजिटिंग कार्ड का भी, इसका भी, उसका भी, तब मेरे को लगता है कि ब्रांड किट में आप प्रॉफिट कमा सकते हो। बाकी लोगो मेकिंग पे काफी पैसा है, बिकॉज लीस्ट पेड जो चीज होती है वो होती है सोशल मीडिया पोस्ट, और मोस्ट पेड होता है लोगो एंड ब्रांडिंग। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको हेल्प कर सकता है। और मेरे को लगता है बाकी तो यार कोडिंग है, अगेन विदाउट एनी डाउट। कोई अगर टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो कोडिंग सीखिए भाई। अगर आपको टूल्स बनाने आ गए तो आप एप्स बना बना के बेच सकते हो, व्हाइट लेबल कर करके बेच सकते हो। मतलब आप एक सोल्यूशन निकाल लो कि मैं आपको व्हाइट लेबल ऐप बना के दूंगा, मेरा इतना प्राइस रहेगा, आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो उसमें। सो आई थिंक सो दीज आर, ये मैं थोड़ी सी हार्ड स्किल्स की तरफ चला गया। बाकी एवरग्रीन अगर कुछ बात करो तो वो सॉफ्ट स्किल्स होती है। जितने सॉफ्ट स्किल्स आपके अच्छे उतना ज्यादा आपको पेमेंट मिलता है। मतलब हार्ड स्किल्स आपको जॉब दिला सकता है, सॉफ्ट स्किल्स आपको वो जॉब में रहने में हेल्प करेगा ऑन अ ये वेरी लार्ज एक्सटेंट। सॉफ्ट स्किल्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करो ना, यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब कम्युनिकेशन, हम्म जैसे बात करने का तरीका, नेगोशिएशन, आपके जो मतलब मोल भाव करने का तरीका होता है। उसके हम्म बाद जाके नेटवर्किंग, मतलब आप लोगों से कैसे बातचीत करना शुरू करते हो, ये सब सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट हो गया। ओके मतलब ये आपको कहीं आपको लिखा नहीं रहेगा किसकी रिक्वायरमेंट है। हम्म आपके आप अगर कोडिंग भी कर रहे हो तो उसके साथ आपकी सॉफ्ट स्किल है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज वो कोडिंग अगर आप कर रहे हो, आप वो कोड्स या आप जो ऐप बना रहे हो उसको बेच पाओगे अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रांग है। तो मेरे को लगता है टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ जो हार्ड स्किल्स होती है उसके साथ सॉफ्ट स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। वो कॉम्बिनेशन विल गेट यू टू अ ग्रेट हाइट। Okay, हाँ जी। okay, that's great. That's perfectly fine. And time is also like only 6 minutes remaining, so then we will conclude it. And परफेक्ट, विल okay, कंक्लूड इट। आई होप यू गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स yeah, एंड I इंटरेस्टिंग चीजें पता चलोगे। right. मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और ऑडियंस को भी आई होप कि कुछ यूजफुल चीजें या कुछ इनसाइट्स पता चले होंगे. And really thankful to have you in the show, Yogit bhai, and really glad to have you. And we will meet again. ऑलवेज यार, बनाते रहो यार ऐसे पॉडकास्ट, मिलते रहो लोगों से एंड Yeah, नेटवर्क करते रहो, बहुत आगे yeah, बढ़ोगे। मेरे को लगता है कि नेटवर्किंग इज रियली योर नेटवर्क। एंड मैं जल्दी इस पे प्लेबुक भी बना रहा हूँ एंड होप सो दैट विल बी रिलीजिंग वेरी सून, एंड लेट्स सी okay, एंड होप फॉर द बेस्ट। okay, sure. Thank you so much, and nice to meet you. Thanks a lot.